Okay, class. So, basically, in our previous class, we had started this chapter, which was the chemical energetics, and we discussed how do we find these chemical energetics in terms of the physical processes as well as the chemical processes. So, but what basically are physical processes? Physical processes are those which can be easily reversed and they are able to be separated from each other, like any mixture which is produced as a result of physical process can be separated. But in case of the chemical process, there is no way to reverse the reaction, and uh, there's no way to reverse the reaction as well. Plus, the new compounds are formed in case of the chemical reaction. Whereas in case of physical process, no new substances are formed. So physical process does not form new substances and they can be reversed and they can be separated. However, in case of chemical reaction, they do not reverse the reaction and it is not easy to separate the compounds or the mixtures. इसके अलावा we also discussed how the exothermic and endothermic reactions are represented. Endothermic reactions are the one in which the heat or energy is taken into the system, whereas in case of the exothermic reaction, the heat or energy is taken out of the system. That is represented in this diagram. The heat is being taken into the system in case of endothermic, and in case of the exothermic, the heat or energy is taken out of the system. We also came across the different examples in which we have the endothermic and exothermic reactions. So if we look again about the endothermic reactions in terms of chemical reaction, so all those reactions which require heat, heating, that is an example of the endothermic. So thermal decomposition of any compound requires heat. Only there you will get new products formed. So it is an endothermic process. Then the electrolysis of the water, ये हमने किया था in electrochemistry chapter, जहाँ पे we did electrolysis through the electricity. तो वहाँ पे water was broken down into the hydrogen gas and the oxygen gas. That was an example of the endothermic. Or photosynthesis is basically the biochemical reaction which takes place in the plants to make food from carbon dioxide, water and sunlight. क्योंकि इसमें सनलाइट जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और हीट. फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेसेस में. तो उसमें हम वो प्रोसेस जिसमें गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म, जहाँ पे इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो जहाँ पे वी रिक्वायर्ड गैस टू लिक्विड एंड liquid to solid form. So that is an example of the endothermic process. Boiling, melting and sublimation. Boiling क्या होगा? Converting from liquid to gas. Sorry, my mistake. We have to convert into the gaseous. हमने solid से gaseous form की direction में अगर move करना है तो वो हमारे पास endothermic का केस होगा. मतलब कि हम solid को melt करते हैं तो हमें उसे heat करना पड़ता है. Now there is an absorption of the heat. That is an endothermic. फिर उसके बाद liquids से gas में convert करते हैं हम, तो उसमें भी हम उसको फिर boil करते हैं. Again, it is the absorption of heat, so it is also an endothermic process. और जो sublimation होता है, it is a direct conversion from the solid into the gaseous form. ये topic हम दोबारा से study करेंगे when we will discuss the mixtures and solutions. So the sublimation is conversion from solid to the gas upon heating directly. So it requires heat. So that's why it is also an endothermic process. फिर उसके बाद कुछ आयोनिक कंपाउंड्स है जिनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो है वो कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही खुद ही प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक. फिर एक्सोथर्मिक में जो हमने केमिकल रिएक्शन के टर्म में बात की थी,
It was the neutralization reaction in which we have the reaction between an acid and a base which produce the heat energy. It is an example of the exothermic reaction or combustion, which means we have to react a compound with the oxygen. So that will produce heat along with some new products. It is a combustion. And respiration is the biological activity done by the living organisms in which the oxygen is taken to the body, and that oxygen is basically involved in breaking down the glucose or food particles inside the body to convert into the water, carbon dioxide, etc. और फिजिकल प्रोसेस में बात करें तो अब हम ये रिवर्स करेंगे कि हमने अगर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आना है तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। और इसमें जो एक्सोथर्मिक है वो यही है कि हीट जो होगी वो सराउंडिंग में डेसिपेट होगी या रिलीज होगी। इसके अलावा कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो भी हमारे पास एक्सोथर्मिक की सिचुएशन क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी ऐड एसिड्स और एल्कलीज इनटू द वाटर, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। ये रिप्रेजेंटेशन है कि जब हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाएगी, उस वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर रेज हो जाएगा और वो हॉट हो जाएगा। जबकि एंडोथर्मिक में सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होगी, जिसकी वजह से द सराउंडिंग विल द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल रिड्यूस, इट विल डिक्रीज एंड इट विल कूल डाउन। So this is what we discussed in our previous class, and we also discussed how we can represent the exothermic reaction or endothermic reaction in the form of the graph. This is one simple example. This is one simple graph for the exothermic reaction. बेसिकली रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है इनटू द सराउंडिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका जो बेटर वे है ग्राफ का वो ये वाला है। इसमें हमारे पास मजीद एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी को भी मजीद क्लियरली बता सकते हैं। बेसिकली क्या था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि हमारे पास एक तरफ वाई एक्सिस में एनर्जी होगी और x axis के ऊपर we have time, or you can also represent the progress of the reaction on the x axis. Progress of the reaction mean how the reactants are converted into the product. और टाइम का मतलब ये होता है कि जब टाइम पास ऑन होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्जन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस होगा एनर्जी का फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स, उसको हम कहेंगे डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब ये आगे आएगा, डेट इज कॉल्ड एंथैल्पी। और चेंज इन द एंथैल्पी, एंथैल्पी इटसेल्फ जो होता है वो एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये साइन जो होता है डेल्टा का होता है, दिस साइन मींस डिफरेंस। इट इज कॉल्ड डेल्टा and it is basically a difference. It is a difference. अभी डिफरेंस किसके बिटवीन होगा? टू एंथैल्पी वैल्यूज। एक वैल्यू जो हमारे पास सेकंड स्टेज की होगी, वैल्यू जो इनिशियल स्टेट की होगी। अब इसमें हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो है रिएक्टेंट, क्योंकि हमने पहले रिएक्टेंट लेते हैं अपने सॉल्यूशन में, या हमारे सिस्टम पहले रिएक्टेंट आएंगे, उसके ऊपर फिर हम कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसके रिजल्ट में इट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी उसको हम H2 कंसिडर करेंगे। तो ये हमारी फाइनल से पोजीशन है, ये फाइनल स्टेज है और ये हमारी इनिशियल स्टेज है। तो डेल्टा का मतलब ही यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जब हमने चेंज फाइंड करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल के लिए हम कहेंगे, बट इन दिस केस इट इज बेसिकली द डेल्टा, इट इज बेसिकली द H ऑफ द प्रोडक्ट माइनस H of the reactant। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी वैल्यू माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी वैल्यू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा है। इससे जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे सर तो हमें यस चाहिए। सर आप बता सकते हैं एंथैल्पी का क्या मतलब है? एंथैल्पी बेसिकली हीट कंटेंट को कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ द, इट इज बेसिकली द हीट कंटेंट एंथैल्पी, or the amount of the energy present in the
ऑर्गेनिक इन एनी कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो हीट प्रेजेंट होती है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ओके उसका हम सर। एंथैल्पी कहते हैं। तो ये डिफरेंस था, और फिर ये वैल्यू आती है नेगेटिव में क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो डिफरेंस है फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द टॉप ऑफ द पीक इज बेसिकली द activation energy, and we also discussed this thing that activation energy is basically the amount of the energy required for the chemical reaction to take place. रिएक्टेंट में अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी तो उसके रिजल्ट में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और ये हमने रिएक्शन काइनेटिक्स के या रिएक्शन के चैप्टर में भी स्टडी किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स की होगी या रिएक्टर्स में एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो रिएक्शन प्रोसीड करता है। फिर उसके बाद हमने दूसरा ग्राफ भी स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कि एंडोथर्मी के केस में प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज बेसिकली द गेन ऑफ हीट और गेन ऑफ एनर्जी। तो जब रिएक्टेंट्स एनर्जी गेन करेंगे तो उसके रिजल्ट में जब प्रोडक्ट बनेंगे तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे जो फाइनल स्टेज है विच इज बेसिकली प्रोडक्ट्स, उसका हम देंगे वैल्यू H2, उसकी वैल्यू ज्यादा है, और रिएक्टेंट्स की वैल्यू H1 वो कम है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव चेंज होगा। सो डेल्टा H विल बी रिप्रेजेंटेड बाय H2 माइनस H1। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है द रिएक्शन फेजेस। रिएक्शन फेजेस का मतलब ये है कि जब कभी रिएक्शन प्रोसीड होता है तो वो किस तरह से होता है। रिएक्शन प्रोसीड होता तब है जब हमारे पास स्टार्ट में रिएक्टेंट्स होते हैं और फिर बाद में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। रिएक्टेंट्स भी कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होंगे, कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, और प्रोडक्ट्स भी कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन कैसे होती है, हमने ये चीज डिस्कस करनी है यहाँ पे। हमें ये चीज पता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होंगे पहले वो आपस में बॉन्ड हुए होंगे आपस में, उन बॉन्डिंग में भी कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट होगी तभी वो बॉन्ड एक तरह से बना रहता है। तो जब केमिकल रिएक्शन हमने करना है तो हमारा मकसद क्या होगा कि हम इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करें। जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं इनके जब आपस में बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसके रिजल्ट में कोई न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो अब रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं उनको जो हमने एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए वो होगी एंडोथर्मिक एनर्जी, क्योंकि आपने एनर्जी खुद से प्रोवाइड किया है टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में जो इनके एटम्स हैं दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब ये सेपरेट हैं हुए में एक दूसरे से, बट दे कैनॉट एग्जिस्ट इन दिस वे, दे कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन दिस वे, बल्कि इनको किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ जो है कंबाइन करना होगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन होती है इसमें ये होता है कि जब ये रिएक्टेंट्स के एटम सेपरेट आउट होते हैं तो फिर ये अब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। So this nitrogen will bond with this oxygen and this nitrogen will bond with this oxygen, जिसके रिजल्ट में you will get a new type of the molecule or a new compound. Now this new compound is NO over here. NO and NO. NO का जो कंपाउंड का नेम है कोई बता सकता है क्या होता है कंपाउंड नेम NO? Yes, anyone? The name of the NO compound, please. Student, is a very easy compound. NO. सर नाइट्रोजन ऑक्साइड। Yes, nitrogen oxide. इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको नाइट्रिक, इसको नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कहते हैं। ये सारे नाम है इस NO के। सो वी हैव दिस कंपाउंड फॉर्म। अब क्या हुआ था इनिशियली हमारे पास ये N का मॉलिक्यूल था दैट वाज N2। इसको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भी कह सकते हैं,
और O2 भी हमारे पास इनिशियली एक मॉलिक्यूल था, O2 गैस या O2 मॉलिक्यूल। तो इनके आपस में बॉन्ड ब्रेक हुए, जिसके रिजल्ट में ये एटम सेपरेट आउट हुए। फिर इन एटम्स का आपस में बॉन्ड हुआ, जिसके रिजल्ट में न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई। सो वी गॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड हेयर। तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी थी उस सिस्टम को, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक। सो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस। कॉल्ड नहीं हम कह सकते, क्योंकि एंडोथर्मिक इज समथिंग इन विच द हीट एनर्जी इज टेकन इनटू द सिस्टम। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और उसके बाद जब बॉन्ड्स की आपस में कॉम्बिनेशन होती है या बॉन्डिंग होती है, तो उसके रिजल्ट में इनमें से एनर्जी रिलीज आउट होती है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि इनको आपस में बॉन्ड करने के लिए उतनी ही एनर्जी नहीं चाहिए जितनी की एनर्जी इनको ब्रेक करने के लिए चाहिए थी, बल्कि ये जो एनर्जी अब जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, उसको हम कहते होते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड मेकिंग इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये चीज आपने लर्न करनी है। सो यहाँ भी चीज मेंशन किए हुए है कि जब बॉन्ड्स आपस में बनेंगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब बॉन्ड्स के हमने ब्रेक करने होंगे तो वो एंडोथर्मिक है। तो ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, दे आर मेकिंग बॉन्ड विच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे हमारे पास ए बी कंपाउंड को ब्रेक किया जा रहा है यूजिंग द एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक है। तो आप देख सकते हैं कि जब प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी, और जब रिएक्टेंट साइड पे जब एनर्जी होगी तो वो एंडोथर्मिक होगी। इसको आप केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में या केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन विच साइड, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सोथर्मिक एंड रिएक्टेंट की साइड पे एंडोथर्मिक। फिर एक यहाँ पर हमारे पास अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक केमिकल रिएक्शन है। हमने अपने क्वेश्चंस में बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज को यूज करना है। अब बॉन्ड एनर्जी वैल्यू इटसेल्फ क्या बन गया इसका मीनिंग, क्योंकि हमने बात की थी वो जो बॉन्ड जो दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी थी। तो उसका डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बॉन्ड एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed to break one mole of a chemical bond. It is also called the amount of energy released when one mole of the bond is formed. तो हम दोनों वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब एक मोल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, या जब एक मोल बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। तो आप इस फर्स्ट लाइन के टर्म में भी बता सकते हैं और सेकंड लाइन के टर्म में भी बता सकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए, ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे, और बॉन्ड फॉर्मिंग के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। अब इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं व्हाइल वी हैव टू शो द कैलकुलेशंस। आपको यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन नजर आ रहा है जिसमें हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस टू मेक वाटर वेपर प्लस हीट। तो हाइड्रोजन गैस आपको पता है इट इज H2। तो ये आपको H2 नजर आ रहा है, एक ये H2 मॉलिक्यूल है और एक ये H2 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हो गया O2। इनका आपस में रिएक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में यू गेट वाटर वेपर विच इज H2O। सो दिस इज H2O over here, one H2O and another H2O molecule along with the heat। अब आपका पर्पस क्या होगा कि आपने इस केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है हम फाइंड करते हैं यूजिंग दी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। So bond energy values are required here for the calculation of the bond enthalpy। इस बॉन्ड एंथैल्पी को हम कहते होते हैं ओवरऑल एनर्जी चेंज। ओवरऑल एनर्जी चेंज जिसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। क्योंकि हमने कहा था डेल्टा का मतलब क्या था, चेंज,
और चूंकि ये H मैंने कहा था एनर्जी है, इसको आप H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So delta H means overall energy change, which is now equal to the energy taken in when bonds are broken minus energy given out when bonds are formed. तो जब एनर्जी आप टेक इन करते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उसमें से आपने एनर्जी को माइनस करना है, जो कि एनर्जी रिलीज होगी. सो इसके लिए सिंपल वर्ड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इस चीज को सिंपलीफाइड फॉर्म में बता सकते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखनी है और इसकी जो सिंपलीफाइड फॉर्म है वो भी आपने याद करनी है. पहले तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें. यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो कुछ ऐसे है कि पहले तो आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करना है. इसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा. ये वैल्यूज आपने याद नहीं करनी बल्कि ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि H2 होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू होती है 436 किलो जूल पर मोल. इट इज मोल ओवर हियर, जो कि यहाँ पे कट आउट हो गया. इट इज मोल. सो 436 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इसी तरह से बाकी भी आपको जो एटम्स के बिटवीन बॉन्डिंग शो हो रही है इनकी भी अपनी अपनी पर्टिकुलर एनर्जीज एसोसिएटेड हैं. तो आपने इस टेबल को यूज करना है ऑन दिस केमिकल रिएक्शन. अब हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था तो उसकी एनर्जी हमने टेबल से देख ली. अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दो तो ये ऑक्सीजन एटम बनाए हुए हैं. इसके अलावा इफ यू लुक केयरफुली हियर, there are two lines between these two oxygen atoms जो कि रिप्रेजेंट कर रही है डबल कोवलेंट बॉन्ड को. सो देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स. क्योंकि ये अपनी एक्चुअल सिचुएशन में है, एक्चुअली मॉलिक्यूल के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो अब हमने टेबल को दोबारा से देखना है, रेफर करना है. तो इसमें हमें वो मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए. एंड वी हैव वन ओनली वन एग्जाम्पल जो कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड है. लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे विल आल्सो यूज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला बॉन्ड एनर्जी वैल्यू दी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स जो इस कंसेप्ट में वीक होंगे दे विल अप्लाई दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू. और इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आप इसको दो से मल्टीप्लाई कर दें. इट इज नॉट इक्वल टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कुछ और है, ये स्ट्रेंथ कुछ और है, और इसका ये मल्टीपल नहीं है. अब single covalent bond between two oxygen atoms is not considered to be like multiple of this oxygen to oxygen double covalent bond. ये अगर आपने वैल्यू लेनी है, इसकी वैल्यू क्या बनती है 496. तो ये 496 का हाफ नहीं होगा. इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट द केस. सो जो स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे वो रॉन्ग होंगे कि वो इसी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. सो हमने यहाँ पे वैल्यू कौन सी चूज करनी है, दिस वन 496 वैल्यू. तो हमारे पास अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो हमने टेबल से देख ली. इसके बाद हमारे पास न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज H2O. अब H2O में आपको नजर आ रहा है, अगर मैं एक H2O मॉलिक्यूल लेता हूं तो इस एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर आई हैव हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन के दो बॉन्ड. Within one H2O I have two hydrogen to oxygen bonds. एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है. So there are two hydrogen oxygen bonds in one water molecule. So I will take the value from here. मेरे पास है यहाँ पे टेबल के अंदर गिवन वैल्यू 463. अब 463 वैल्यू जो होगी वो सिर्फ तब थी जब एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था. लेकिन वाटर के केस में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड थे विद द ऑक्सीजन, विच मींस हमें इस टाइम अगर वाटर के लिए टोटल एनर्जी वैल्यू फाइंड करनी है पूरे वाटर के लिए, तो हमें फिर इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब ये सिचुएशन इससे डिफरेंट है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी. यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड में ही डिफरेंस आ गया था, ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ये था डबल कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे चीज सेम है इन अ सेंस कि ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये पार्ट भी इतना
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और दूसरा भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसलिए हमें सिंपली क्या करना होगा, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए होगी। लेकिन चूंकि इस केमिकल रिएक्शन में दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो सेम वही वैल्यू जो आपने ऊपर के लिए फाइंड की थी वही वैल्यू आप नीचे के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने एक वैल्यू 1H2O के लिए फाइंड कर ली, अगर एक H2O के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर दी है तो उस वाटर वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू मिल जाए, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। या दूसरे सेंस में आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया दो, इसके बाद हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 3 एंड हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 4। तो इन टोटल यू हैव 4 टाइम्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आपको जो टेबल में वैल्यू मिलती थी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर वही मिलेगा। या तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल से को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 4 ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फाइंड आउट कर लें, मतलब एक वैल्यू फाइंड करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। सो यू विल गेट द वैल्यू इन दिस वे। अब आपने क्या करना होगा, आपने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इनटू द केमिकल इक्वेशन। तो ये यहाँ पे इन्होंने वही फार्मूला यूज किया है। हमने कहा था कि एनर्जी टेकन इन व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो बॉन्ड्स हम यहाँ पे ब्रेक जो कर रहे हैं वो रिएक्टेंट के कर रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट ये होता है H2NO2। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे वो रिएक्टेंट के हो रहे थे। तो रिएक्टेंट हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो विच मीन्स हमने जब इसको यहाँ पे मेंशन करना है तो हमने कैसे करना है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्योंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल थे उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैल्यू हमारे पास टेबल से मिल गई थी H2H बॉन्ड की। और हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेक हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेंशन कर दिया। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ 436 एंड 1 वैल्यू ऑफ द 496। ये तो होगी रिएक्टेंट के लिए। फिर प्रोडक्ट साइड पे हमने बात की थी कि हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। अब दो वाटर मॉलिक्यूल्स में हमने टोटल चेक किया था, देवर 4 टाइम्स ऑफ द OH बॉन्ड्स। तो आपने 4 OH बॉन्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो कि ये साइड है। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एनर्जी गिवन आउट व्हेन बॉन्ड्स आर मेड। बॉन्ड्स किसके मेड हो रहे हैं, किसके बन रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड्स, प्रोडक्ट साइड के। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं या उनकी फॉर्मेशन हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स की वैल्यू को मेंशन करना है। बीच में माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन इज देयर। सो 4 टाइम्स ऑफ द OH bonds are being made. So 4 times of the 463, ये वैल्यू हमने टेबल में से ली थी। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द वैल्यू। अब ये वैल्यू अब मिल रही है हमें नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस चीज को आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो आपको आइडिया होगा कि हाइड्रोजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज बेसिकली द कंबस्शन रिएक्शन। ये एक कंबस्शन रिएक्शन की एग्जांपल है। तो कंबस्शन रिएक्शन हमने अभी बात की थी कि ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि एक्सोथर्मिक की एग्जांपल थी। सो कंबस्शन रिएक्शन विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स व्हाई आपको जो हीट भी मिल रही है वो प्रोडक्ट साइड पे मिल रही है। हमने ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि एक्सोथर्मिक के केस में the energy is produced on the product side, that is an exothermic process. तो बेसिकली आप वैल्यूज को यूज करके भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है। इन द सेम वे आपके पास मजीद ये भी प्रोसेस हैं जिसमें भी सेम वही काम हो रहा है। आप इस तरह के रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी कैलकुलेशंस को। हमारे पास यहाँ पे एक मीथेन मॉलिक्यूल है, एक दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दो वाटर मॉलिक्यूल।
अब हम फिर से वही बात करेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को या प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन। अब हमारे पास यहाँ पे CH4 है। आपको ये चीज जानने के लिए कि एक CH4 के अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे किस किस एटम के बिटवीन, इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसको रिकॉल करना होगा। अगर आपने अभी नहीं किया तो हम इसको बाद में करेंगे। तो हमें उसका जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो हमें पता है कि CH4 इज स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, जिसमें कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और बाकी हमने O2 की बात ऑलरेडी कर ली थी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज बेसिकली बॉन्ड इज अ मॉलिक्यूल इन विच देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास चूंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डबल कोवलेंट बॉन्ड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको इसका पता होना चाहिए, ये भी केमिकल बॉन्डिंग से आपको रिकॉल करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा है, दैट देयर इज अ कार्बन and carbon is bonded through double covalent bond on one oxygen atom and double covalent bond with the other oxygen atom. This is the structure of the carbon dioxide. और वाटर का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपने वैल्यूज यहाँ पे जो यूज करनी है तो उसके लिए भी आपको टेबल से ही वैल्यूज लेनी होगी। अब हम बात करें कि ये है CH4 मॉलिक्यूल। तो इस CH4 मॉलिक्यूल में वी हैव 4 CH बॉन्ड्स, 4 टाइम्स ऑफ द CH बॉन्ड्स है यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ द CH बॉन्ड्स। अब एक CH बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, डेट विल बी टेकन फ्रॉम द टेबल। तो हमारे पास टेबल में यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। सो CH बॉन्ड वैल्यू इज 435। एक टेबल ये मेंशन किया हुआ है, एक टेबल ये मेंशन किया हुआ है। तो दोनों जगह पे एक ही वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, CH4 मॉलिक्यूल जो कि मीथेन है उसके लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स आप इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी फॉर द होल मीथेन मॉलिक्यूल। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो है O2। O2 की बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं कि O2 के लिए हमने एक पहले लिया था एक मॉलिक्यूल O2, यहाँ पे है 2 O2 के मॉलिक्यूल। तो मतलब यही हुआ कि आप ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं। तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो ये वाला है। स्ट्रक्चर के लिए वैल्यू जो लेनी है वो ऐसी होगी, आपको पूरे मॉलिक्यूल की नहीं मिलेगी, आपको जो मिलेगी वो एक साइड की मिलेगी, मतलब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की मिलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे टेबल में आपको जो वैल्यू मिल रही है ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिल रही है। तो CO2 तो 2 CO बॉन्ड से बना हुआ है। तो इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो CO2 मॉलिक्यूल की मिल जाएगी। और लास्ट में आपके पास वाटर है। वाटर की बात हम कर चुके हैं, वहां भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, विच मीन्स आपको OH बॉन्ड या तो HO बॉन्ड कह दें या OH बॉन्ड कह दें, बात एक ही है। तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू विल गेट वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद 4। अब आपने रिएक्टेंट की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली, आपने प्रोडक्ट की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली। अब आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो इस फार्मूला में पुट करना है। इस फार्मूला को मैं मजीद सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसको हम कहते होते हैं बॉन्ड ब्रोकन माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपल टर्म्स में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स मेड या बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो ब्रोकन के लिए मैं यूज करता हूँ BRK माइनस फॉर्म्ड। ये सिंपल सा एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ब्रोकन माइनस फॉर्मेशन और वैल्यूज पुट कर लें। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि एनर्जी take in या absorbed when bonds are broken minus energy given out या release when bonds are formed। ये भी आपके पास वर्ड्स याद होने चाहिए माइंड में, लेकिन अप्लाई करते हुए यू कैन सिंपली यूज दिस फार्मूला। सो दैट्स हाउ वी कैन कंप्यूट द enthalpy value or change in overall energy using the same formula। So they have just done the same thing over here। So energy is calculated, and now in this case it is the endothermic process, no,
Now here the value is calculated to be minus. So minus 728. It is exothermic. माइनस वैल्यू आ गई है विच मीन्स ये एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है. यू कैन फाइंड हियर दैट इट इज द कंबस्शन ऑफ द ऑक्सीजन मीथेन मॉलिक्यूल. तो एक हमने ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जाके हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है विच इज कंबस्शन रिएक्शन एंड इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. So students, that's all for today. We'll continue this chapter in our next class. Till then, take care and Allah Hafiz everyone.